Hello and Assalamu alaikum. This is Miramla Azhar, your IELTS and PT expert, and this is our second podcast related to IELTS preparation. But today specifically, we are going to talk about speaking module. As everybody knows that speaking has 3 parts. Number 1 is informal answering, number 2 is cue card, and number 3 is follow-up questions. For this, we have invited a very special guest in our studios. But I would like to call her a very brilliant student because she just got 7 bands in IELTS speaking. So let's invite Saptar Khalid. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. How are you, ma'am? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैम. अच्छा सप्तर, थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताओ. My name is Dr. Saptar Khalid and I am a clinical physiotherapist. Okay. Currently, I am running my own clinic and I am basically from Lahore, by birth from Lahore. As you know, the Lahore is a city of historical places. Obviously. Yes. Okay, so I would like to know कि आपने IELTS जो है वो कब किया था? पहले तो ये हम आपसे पूछेंगे ना, और किस लिए किया था? What was the purpose? So tell the audience. Basically, ma'am, as the IELTS is an international language testing service, definitely. so अगर किसी ने internationally कहीं move करना है बाहर तो IELTS is the first step. So 3 months पहले मैंने IELTS किया था. So it was I'm just very fond of studying abroad and I want to practice in abroad, especially UK. So for moving UK, this is the first step to do IELTS. Okay, That's why this was my first priority कि पहले IELTS का step हो जाए, उसके बाद आप हम next processing करते हैं. ठीक है. तो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे ना कि आपने प्रिपरेशन कैसे की थी और Yes, व्हाट ma'am. वर द डिफिकल्टीज यू फेस्ड और हाउ डिड यू प्रिपेयर. सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग. ओके, कि अपना बताएं कि जी आपने कैसे ये स्टार्ट किया और क्या क्या हुआ. All right. As I am a mother and a professional woman also, so the time management is a very difficult thing. Yeah, IELTS में सबसे पहले you have to manage your time because it is very difficult along with a job to study and to look after your kids. So I just booked the House of English only for time of management and also that she can she can provide me a structured plan. So without any other option or कुछ भी सोचे समझे बगैर I just booked the House of English and called Miss Ramla and booked a session with her. And after that I just started my session with all my trust on her. I was sure कि ये वो बंदी है यार जो मुझे IELTS पार करा देगी. क्योंकि अच्छा. मेरे लिए मुश्किल था करना. एक चीज़ ये है कि एज यू टोल्ड के मतलब स्केड्यूल बहुत टाइट था, बड़ा मुश्किल था. तो फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस को कैसे मैनेज किया? क्योंकि मेरी क्लासेस तो आपको पता है टाइम पे शुरू होती हैं. मैडम का यही था, मुझे पता था कि शी इज़ वेरी पंक्चुअल, तो उनके साथ रह के मैं भी पंक्चुअल हो जाऊंगी. पहला पॉइंट तो ये था कि शी वॉज रेगुलर एंड पंक्चुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द डिफरेंट इवेंट्स और पब्लिक इवेंट्स. उनकी 1 या 2 छुट्टियाँ होती हैं एंड शी इज़ ऑन टाइम इवन दो कि संडे इज़ ऑल्सो नॉट ऑफ एंड प्लस दैट शी इज़ अवेलेबल 24 hours. दैट इज़ हर प्लस पॉइंट. Okay, let's talk about the parts of speaking. ठीक है कि पार्ट 1 जो है उसमें इनफॉर्मल होता है. अच्छा, पहले इससे पहले मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपने किस काउंसिल से अटेम्प्ट किया था? IDP ब्रिटिश IDP से. जी. तो ऑनलाइन जब आप गई थी उधर सेंटर में तो आपका ऑनलाइन हुआ था या वीडियो पे हुआ था या सॉरी फिजिकल हुआ था? हाँ, इट वाज फिजिकल. तो एग्जामिनर ने क्या पूछा था पहले वो सब बताएं ना. Firstly, I was very nervous. ठीक है. It was my first experience and I was very confused, but I was sure that I have prepared very well. So when I entered the room, I just courage up myself that I can do it because I have a very good preparation. So the examiner was sitting in front of me and I can say that the format was exactly the same we have practiced in the mock test, in the daily routine. There was a first part in which there were informal questions and she have asked 5 to 6 थोड़ा सा questions याद है for कि me. क्या क्वेश्चंस आए थे? What were the Question questions? वही था, what is your name, where do you live, what do you study and currently what are you doing. यही जो 4-5 informal questions होते हैं. तो थोड़ा सा after यहाँ that- पे ये बताती चलूँ कि जो इनफॉर्मल पार्ट 1 होता है उसमें आप कनेक्टर्स अपने यूज़ कर सकते हैं. जैसे इनफॉर्मली बात कर सकते हैं, जैसे इन माई ओपिनियन, टू माई माइंड, ऑनेस्टली स्पीकिंग और आई बिलीव. और अगर आप कोई चीज़ डिनाई कर रहे हैं लाइक यू डोंट लाइक दैट थिंग तो आप कहेंगे जी नॉट रियली, नॉट एट ऑल. येस और नो का इस्तेमाल मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था कि आप ना करें, इससे आपका बैंड जो है वो इतना अच्छा नहीं बनता.
सो आपने बिल्कुल नेचुरल स्पीकिंग करनी है और यू हैव टू कम्युनिकेट द एग्जामिनर वेल. सो क्या था, आई कांटेक्ट अच्छा था? आई कांटेक्ट अच्छा था. एक्चुअली आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट एंड डेली विद मिस रमला. I never skipped a single class. It was almost 3 weeks or 4 weeks my preparation week, and I have never skipped a class, and especially the mock test. I just took that mock test like the examiner is in front of me, and when examiner was in front of me, I was thinking that Miss Ramla is in front of me, and I have to take the exam likewise the same I took with madam. There is only one thing I would like to emphasize is कि आपका focused होना बहुत जरूरी है और committed होना बहुत जरूरी है. No matter what happens, आप कोई भी practice is very important. Practice is the key to success. That's why we are having 5 sessions in a week. और कभी extra, अब तो मैंने mock test भी Saturday Sunday में start कर दिए ताकि students को ज़्यादा accommodate किया जा सके. अच्छा, part 2 होता है क्यू कार्ड ना, जिसमें examiner आपको 1 मिनट देता है और आपने 2 मिनट continuously बोलना होता है. How did you manage to keep your momentum in that? मैम एक्चुअली आई जस्ट रिमेंबर ऑल द स्ट्रेटजीज यू टोल्ड मी. आपने यही कहा था कि आपको क्यू कार्ड आएगा, आपके पास एक पेपर होगा, यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स ऑन दैट, एंड यू कैन when you start speaking, you just look at the paper, look at the key points. You will never ever you will never ever lose your fluency. So I just wrote all the points, and cue cards were already all similar which we have done. कौन सा क्यू कार्ड आया था आपको? टॉपिक को याद है? टॉपिक था कि शॉप्स पे था मैडम, वो ये जो आपके जो मॉल्स हैं कि व्हाट डू यू थिंक इनके मॉल्स के बारे में था, और उसके बाद डिस्क्राइब अ शॉपिंग मॉल और एनी लाइक मार्केट, इस तरह शॉपिंग मॉल. तो उसमें था डिफरेंट की मतलब आप किस तरह उसको देखते हैं. हिंट्स भी थे. 3 क्वेश्चंस है. आई जस्ट रोट ऑल द पॉइंट्स ऑन द पेपर, एंड व्हेन आई स्टार्ट द स्पीकिंग आई हैव अ गुड आई कॉन्टेक्ट विद द एग्जामिनर, and then I look at the papers, my key points, and my fluency was maintained. Okay, like motivation कैसे मिली बोलने की एग्जामिनर के सामने? This is my question. प्रैक्टिस से. इट वॉज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आई रिपीट माई वर्ड्स दैट द प्रैक्टिस इज अ की टू सक्सेस. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको यू विल नेवर गेट नर्वस. एंड इवन दो आई नेवर एवर मिस्ड अ क्लास, इवन दो आई एम इन हॉस्पिटल, आई एम एट माई होम, एंड इवन माई गेस्ट आर माई होम, आई जस्ट फाउंड अ कॉर्नर so that I can attend a class. Yeah, this is very important कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें तो टिप्स एंड ट्रिक्स और ट्रेनर की जो गाइडेंस है वो भी काम नहीं करती. बिल्कुल नहीं करती. 50-50 होता है ना काम. बच्चे यहाँ पे ज्यादातर ये सोच रहे होते हैं कि जी बस ट्रेनर हमें घोल के पिला दे. अभी भी यही होता है, अभी भी यही हो रहा है. ठीक है कि मतलब उनको हम बता रहे हैं कि भाई क्लास में आए, थोड़ा सा 5 मिनट आए आप लोग, ठीक है, डेली 5 मिनट्स 10 मिनट्स आर इनफ to make your practice. That's why. मैडम यही था कि जब आपने प्रैक्टिस शुरू करवाई थी, इसके अलावा मुझे आपने 2-3 लड़कियों के नंबर दिए थे कि यू कैन, अगर आप मेरे साथ, मैं मतलब एक क्लास लेती हूँ उसके बाद आपको और भी काम है तो आप डिफरेंट गर्ल्स आप प्रैक्टिस करें. आई ऑफन प्रैक्टिस विद डिफरेंट कोलीग्स, विद डिफरेंट फ्रेंड्स, एंड दैट मेड माई फ्लुएंसी, एंड दैट वाज रियली वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर मी दैट आई कैन अचीव माई 7 bands within 3 weeks. That's great. That's great. Okay, now there is another question that what do you think, what are the things that are important for like speaking? आपको क्या लगता है कि क्या टिप्स और ट्रिक्स हो सकती हैं मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ ना? एक तो देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी फ्लुएंसी मैटर करती है, प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है, ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. आपको लगता है कि आपने ग्रामर मिस्टेक कोई की होगी या हो सकती है? मैडम मुझे याद था कि आपने कहा था कि इतने फैंसी वर्ड्स यूज ना करें. यू एज यू आर कंफर्टेबल इन योर जोन, स्पीक इन दैट जोन. ठीक है, आपने बहुत अच्छी जो है आपने जो है उसमें फैंसी वर्ड्स पे नहीं जाना. इसीलिए मैडम बस ये था कि फ्लुएंसी मेंटेन थी. देयर वाज नो ग्रामेटिकल एरर. ऑब्वियसली इतनी प्रैक्टिस की है, जहाँ एरर था वो पहले ओमिट किया है, चीज़ों पे गौर किया है कि वेयर आई एम लैकिंग, सो आई हैव ओमिट ऑल द थिंग्स. क्लासेस का मतलब ही ये था कि जहाँ मेरी थोड़ी सी लैक मैं करी थी तो आपने मुझे वहाँ पे जो है मेरी सारी कमी पूरी की थी. लाइक एप्रिशिएटेड थिंग कि जी नॉन नेटिव स्पीकर होके आप आइल्स में 7 बैंड ले रहे हैं. एग्जैक्टली. दिस इज एक्चुअली बिकॉज हमारी जो बैकग्राउंड होता है एजुकेशनल का, हमारा पाकिस्तान में आपको पता ही है कि किस तरह का है. मैडम आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम. ठीक है, अपने मतलब हमने अच्छे स्कूल से पढ़ा है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज, हमारा सारा कोर्स इंग्लिश में था. बट स्टिल आई कैन से कि इंग्लिश मीडियम आपको सब कुछ नहीं सिखाता. हर टेस्ट की हर चीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड यू हैव टू फुलफिल दैट. तो आइल्स की अपनी रिक्वायरमेंट है कि आपने इसकी स्पीकिंग में ये चीज़ें फोकस करनी है, यू विल गेट द बैंड. सो इट हैपेंड टू मी कि आई जस्ट फॉलो ऑल द थिंग्स. जो पार्ट 3 है फॉलो अप क्वेश्चंस ना, आपको क्या लगता है कि जो क्यू कार्ड होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या कोई और बीच में वो कोई क्रॉस क्वेश्चन भी होता है?
इनिशियली जो 4-5 क्वेश्चंस होते हैं वो तो क्यू कार्ड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो तो आप जब पहले फ्लो में बोल रहे होते हैं यू कैन कंटिन्यू दैट, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे रिलेटेड ही होते हैं बट थोड़े से चेंज हो जाते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेटजीज चेंज हो जाती हैं। तो उसमें ये होता है कि मतलब एक लाजमी नहीं कि आपके पास नॉलेज भी हो बट फ्लुएंसी हो आपकी, कि आप उसमें लैक ना करें। इसके अलावा दिस इज नॉट आई थिंक कि आप रिलेटिव कुछ भी नहीं बोल सकते, रिलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, ये नहीं है कि आपके बस आपने फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए कुछ भी बोल दें, दिस इज नॉट आई थिंक, आपका रिलेटेड होना चाहिए, बहुत प्रिसाइज ना हो बट इट मस्ट बी रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, कि आपका पिछला क्वेश्चन का भी आंसर मेंटेन हो, और जब मेन क्वेश्चन है उसको, एंड इफ आई फाउंड दिस कि इफ इन वन क्वेश्चन आई जस्ट लैक वन थिंग, कि मुझे लगा था कि आई एम गोइंग ऑफ द ट्रैक बट द एग्जामिनर सेड दैट आई रिपीट द क्वेश्चन कि दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर मी। देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि एग्जामिनर्स जो है वो आपको प्रिविलेज देता है कि आप किसी तरह उसको जो है वो सेटिस्फाई कर दें, हाँ, उसको आप ओवरकम कर लें जो आपको लगता है वो। सम पीपल थिंक कि जी जो आइल्स में एग्जामिनर्स हैं वहाँ बैठे हुए हैं वो आप लोगों के कोई एनिमीज हैं, नहीं जी, फोकसिंग योर एवरी वर्ड। और एक चीज आई वुड लाइक टू आस्क कि जो एग्जामिनर का एटीट्यूड था आपको कैसा लगा? क्योंकि अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं जी बहुत रूड थी, मैं मतलब मेरा कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? एज आई मेंशन्ड कि बिफोर एंटरिंग द रूम आई वाज नर्वस, ठीक है, फिर जब मैं आई थिंक आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, सो आई एंटर्ड द रूम एंड आई वाज कॉन्फिडेंट कि आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्यू कार्ड्स, ऑल द इनफॉर्मल एंड फॉर्मल क्वेश्चंस, सो आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, अबाउट माय प्रिपरेशन। Okay. It was not like that I just woke up and randomly sit in front of examiner, उसके बाद मैं कहूँ कि जो एग्जामिनर था वो रूट था या मुझे उसकी समझ नहीं आई, I have prepared for that। अच्छा, इन केस कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है या आ जाता है कि जो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, तो क्या करें फिर उसमें? कोई है ऐसी आपके ज़हन में टिप? अब तो आपने आइल्स दे दिया ना? दे दिया मैडम, ये था कि बस आप जो है थोड़ा सा अगर आपको समझ नहीं आ रही, यू कैन आस्क द एग्जामिनर कैन यू प्लीज रिपीट द थिंग, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं कि आपको समझ में ना आए। ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने फेस नहीं किया कि जो डिफरेंट चीज़ आ गई जो मुझे नहीं पता था या मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो इतने कोई अनोखे नहीं थे, वही थे डेली लाइफ के क्वेश्चन थे या कुछ आपकी जैसे चीज़ें रिलेटेड होती हैं जिसमें आपकी नॉलेज की चीज़ें होती हैं या आपको पता होता है कि मुझसे क्या पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है वैसे। ओके, अगर एक किसी का बैकग्राउंड जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं इंग्लिश का, तो वो कितना टाइम पहले तैयारी करना शुरू करे? मैडम मेरे तो ख्याल में कि 2 months या 3 months उसको लगते हैं, ठीक है, अगर किसी का इतना बैकग्राउंड नहीं है। और along with that daily practice, ओवरनाइट मैजिक नहीं हो सकता, डेली प्रैक्टिस 3 months भी हैं तो डेली प्रैक्टिस करनी है आपने। कोई भी मॉड्यूल है, इवन के लिसनिंग है, रीडिंग है या राइटिंग है, कुछ भी है, यू हैव टू प्रैक्टिस। अब तो देखिए हम आईडीपी और एईओ और इससे रिलेटेड प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो कि बड़े हेल्प कर रहे हैं। और अक्सर आप मैडम देयर इज नथिंग न्यू इन दैट, हाँ ठीक है, आई हैव attempted the online it was an online format, there was nothing new, all strategies were the same, the format was the same, even though I would like to say that if anyone wish to take the IELTS must follow all the strategies, all the format given in different platforms and different websites and along with your instructions, there was nothing new। आप कहें कि मैं वहाँ गई थी तो मुझे वहाँ पे इस चीज़ की समझ ही नहीं आई, समझ आती है पर जहाँ आप लैक करते हैं उसकी भी समझ आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो राइटिंग में लेटर राइटिंग है, एसे राइटिंग है, या इसके अलावा जो भी आपका एकेडमिक है या जनरल है, चीज़ें आपको पता हैं, वही चीज़ें थोड़ी सी चेंज करके हैं बट द फॉर्मेट इज़ द सेम and along with that the questions are, even though questions are the same, I just found all the mock test which I attend with you there, I think that the next day that was the same mock test। और sometimes it happens कि जो मैं तैयारी करा रही होती हूँ मॉक टेस्ट की, वही अगले दिन आ जाता है, सेम टू सेम एग्जैक्टली, राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी। दैट्स एक्चुअली काइंड ऑफ even essays were the same, I have attempted all those essays and even the letter was also the same, even though I have practiced that। Okay, now there is like one thing I would like to ask you कि आपको क्या लगता है कि क्या एक आइल्स के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या क्या और चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, रिलेटेड टू स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ओवरऑल सारा आप बता दो। ओवरऑल तो मैडम इस तरह है कि देखिए नंबर 1 जो है आपको सबसे पहले इसके फॉर्मेट को समझना है, ठीक है, आपने देखने के लिसनिंग में उसका जो एक्सेंट है, इसके अलावा जो डिफरेंट चीज़ें हम लोग देखते हैं उसमें जो 4 सेक्शंस होते हैं, बाजू का तो मैप आ जाता है या वो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, आपने उसका फॉर्मेट समझना है एंड यू हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस विच योर ट्रेनर और जिसके थ्रू भी आप आइल्स कर रहे हैं कि वो आपको जो है वो किस तरह समझाता है। सेकेंडली जो रीडिंग है
रीडिंग प्रैक्टिस से। रीडिंग जो है बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, हाँ। आपको डर लगता है। रीडिंग पे भी हम अपना एक पॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह, और सब कुछ बताएंगे कि जी आप कैसे तीनों पार्ट्स को लेंगे। उसमें रीडिंग को आप देखते हैं, रीडिंग में आप देखते हैं कि जितने बड़े बड़े पैराग्राफ है तो कभी लगता है कि मुझे तो आंसर ही नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो स्ट्रेटेजीज आपने बताई थी कि कीवर्ड देखना है आपने, पैराग्राफ में ढूंढना है, आपको मिल जाता है। ये कीवर्ड जो है ना, ये बच्चों को अभी भी समझ नहीं आता इसको। हमने ट्रू फॉल्स, हाँ बिल्कुल, ट्रू फॉल्स पे बहुत ज्यादा वो होता था। मतलब मैं अपनी बात करूं, आई जस्ट फेस सम डिफिकल्टी इन रीडिंग इनिशियली, बट आफ्टर फॉलोइंग योर स्ट्रेटजीज एंड ऑल योर इंस्ट्रक्शंस, वो इतना इजी रीडिंग हो गया था कि मैं टाइम से पहले फिनिश कर लेती थी ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस। अच्छा, आप एक और मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि जैसे आपने तैयारी के लिए मुझे ज्वाइन किया तो कैसे आई? किसी के रेफरेंस से आई थी? किसी के रिकमेंडेशन से आई? हाँ जी। वो इस टाइम जिन्होंने रिकमेंड किया था, ही वाज माय हस्बैंड्स फ्रेंड, ही इज इन हंगरी राइट नाउ। तो उन्होंने आपसे प्रैक्टिस की थी तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि हाउस ऑफ इंग्लिश जो है ज्वाइन करें। तो विदाउट मैंने भी फौरन ज्वाइन कर। और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी दूर से आई हैं, हमारे लिए टाइम निकाला है, ठीक है। अच्छा, क्विक टिप्स मुझे अब स्पीकिंग के आपने देनी तीनों पार्ट्स के हवाले से, कि अब जो है वो क्वेश्चंस के हवाले से क्या है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि जी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, हमारा मोमेंटम नहीं बन रहा, तो क्या करें? कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न करें या उसको अपने तरीके से ही परफॉर्म करें जाके, क्योंकि कुछ बच्चे याद भी करते हैं क्वेश्चंस, मैंने देखा है। मैडम देखिए, जिसके पास बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है उसको तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम हाउ जैसे हमारी सोसाइटीज ऐसी होती वो याद करने के, जब याद कर लेते तो जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं एग्जामिनर के सामने तो वो आपको लगता है जैसे रोबोटिक स्पीकिंग हो रही है। मैडम नेचुरल फिर कैसे उसमें आएगा? मैडम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, हाँ, ठीक है, जिसपे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लाइक इट्स स्पेस एक्सप्लोरेशन होती है, उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं तो वो थोड़ा पढ़ना पड़ता है आपको। इसके अलावा एनवायरनमेंट है, उसमें डिफरेंट पोल्यूशंस का जिक्र होता है, लाइक वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल समथिंग क्वेश्चंस लाइक रिलेटेड टू साइंस, इकोनॉमिक क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। इफ अ पर्सन हु हैज मेजर्स इन साइंस, he do not have knowledge about IT और कुछ इसके बारे में उसको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप रटा लगाएं या याद करें, बट नॉलेज होना चाहिए। इफ अ पर्सन हु बिलोंग्स टू साइंस एंड ही डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट लाइक IT एंड समथिंग अदर इकोनॉमिक्स, तो उसको थोड़ा सा वो सेक्शन देखने पड़ते हैं। ज्यादातर जो स्पीकिंग में क्वेश्चंस इनफॉर्मल में आते होते हैं, हॉबीज आ गया, फ्री टाइम देखने पड़ते हैं। हैट पे भी क्वेश्चन आते हैं, लोगों को नहीं पता होता। हैट हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये फ्लेवर चॉकलेट। लाइक मैडम जैसे टी पे आते हैं, कुछ लोग बिल्कुल टी लवर नहीं है, बट दे कैन नॉट से कि हमें तो टी पसंद ही नहीं, हम इसका जवाब भी नहीं देंगे। अगर टी नहीं पसंद लेकिन फिर भी उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना। मुझे कॉफी नहीं पसंद तो मैं फिर भी कॉफी के बारे में आपको पढ़ना है, सीड कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे ग्रो कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये चीजें पढ़ने वाली है। नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिव हो सकती हैं उसके लिए, या फिजिकल जो भी है बच्चा लेना चाहे? ऑनलाइन क्लासेस मैडम, मैंने तो एक हाउस ऑफ इंग्लिश ही ज्वाइन किया था तो मैं तो इसी को रिकमेंड कर सकती हूँ। मैंने तो कोई और ट्रेनर ना खोला था, ना देखा था, ना पूछा था, ठीक है। मैंने तो मिस रमला पे पूरा ट्रस्ट किया था और मुझे ये था कि यार ये करवा देंगे मुझे, तो इसीलिए बाकी 2-3 थी, उन्होंने वेबसाइट्स प्रोवाइड किया, उन्होंने कैम्ब्रिज आइल्स वो जो करते फीडबैक प्रोवाइड, सब कुछ तो उन्होंने दे दिया था। फिर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कुछ और, एंड आई वाज सेटिस्फाई विद इट। चलें, लास्ट में आप स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहती हो, ये मुझे बताओ। कोई मैसेज देना चाहती हैं कि वो क्या करें, ऐसे ही जस्ट फॉर लाइक स्टडीज के हवाले से या आइल्स के हवाले से? स्टडीज के आइल्स देखें, ये जैसे कि इंटरनेशनल टेस्ट है, आजकल बूम है मूविंग अब्रॉड, ठीक है, उसका पहला स्टेप आपका आइल्स है। मैं ये नहीं कहती कि आइल्स से आपको सारी इंग्लिश आ जाती है, बट दिस इज इंग्लिश रिक्वायरमेंट टेस्ट, वी हैव टू पास दैट, and for this test we have to follow all the strategies so that we can overcome all the difficulties, ताकि हम ये अपना टेस्ट पास कर सके। उसके बाद अगली प्रोसेसिंग बाद में है, दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी क्रूशियल स्टेप मूविंग अब्रॉड, ठीक है। तो जिन्होंने आइल्स करना है, जो बच्चे चाहते हैं कि हम आइल्स करें और अपना जो है डिजायर्ड स्कोर गेन करें, फॉर देम दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो जो है अपनी सारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करें, डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत मुश्किल कोई चीज़ नहीं है कि आप कहेंगे आइल्स तो हमसे तो नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे। चलें जी, हर बंदे का पोटेंशियल है, वो कुछ भी कर सकता है, बस थोड़ा सा टाइम निकालना है, टाइम मैनेज करना है, स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, एंड यू विल गेन योर गोल। ओके, आप जाने से पहले ना एक सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है? तो ये हाउस ऑफ इंग्लिश की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है? आप इतनी दूर से आई हैं और फिर याद रखना, ठीक है? और थैंक यू सो मच कि आप आई, आपने जो है वो स्पीकिंग के हवाले से बच्चों को गाइड किया। अब बहुत सारे लोग ये देखेंगे और उनको नॉलेज मिलेगी कि वो किस तरह अपनी तैयारी स्टार्ट करें, एंड आई एम रियली ग्लैड कि बहुत आज अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर यू टू, आपकी वजह से मैंने अपना आइल्स किया, मैंने अपना लाइसेंस गेन किया, एंड यू लुक सो कॉन्फिडेंट। मैंने अपना लाइसेंस गेन किया एंड स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग
ठीक है, आई एम इन पाकिस्तान, amazing. इन पाकिस्तान आई एम अ यूके लाइसेंस प्रोफेशनल डॉक्टर, और वो Wow. सिर्फ पहला में आइल्स था, उसके बाद बैकिंग प्रोसेसिंग। अच्छा, उसके लिए IELTS की रिक्वायरमेंट थी। Wow, that's 7 great. था, इट्स ओवरऑल 7.5। Okay, that's great. So No देख element लें। below than 6, no element below than 7, and overall 7.5 था, so I achieved my score just because of you, and thank you so Thank you. much. अब आई ओके, एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से कि जी इस पॉडकास्ट के नीचे अगर कोई आपको कमेंट्स करने हैं या कोई क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, सो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, बट डू कमेंट, ओके? एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट बिकॉज आई एम प्लानिंग कि जी हम रीडिंग पे भी लेकर आए पॉडकास्ट. सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.